Hello everyone, I am Stuti and I am going to teach you rational numbers. So guys, before coming to what is rational number, let us quickly revise what are the numbers that we have studied in our earlier classes. That is natural number, whole numbers, integers and fractions. So guys, what are natural numbers? Natural numbers वो numbers होते हैं जो start होते हैं 1 से और आगे continue करते हैं infinity तक, like 1, 2, 3 till nth term. Nth term means till infinity. Whole numbers are actually those numbers which starts from 0, 1, 2, 3 and they also move till nth term. What are integers? Integers ऐसे numbers होते हैं जिसमें positive numbers भी आते हैं, negative numbers भी आते हैं, plus it also contains 0 in it. Like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What are actually fractions? Fractions are those numbers which can be written in the form of A by B, where A is the numerator and B is the denominator. Okay? So students, now come to the point, that is rational numbers. Rational numbers होते क्या हैं? Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of P by Q. यानी कि ऐसे numbers जिसको हम लोग P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में दो रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट Q should never be equals to 0. अगर आपका Q यहाँ पे Q that is the denominator, अगर आपका denominator यहाँ पे 0 है तो आपका ये चीज पूरी not define हो जाएगी. Next is P and Q को आपके integers होना पड़ेगा. P and Q, both the terms should be integers. Be it be negative, be it be positive, any type of integers. Is it right? Okay. अब कुछ ऐसे numbers आते हैं. Let us take some example जिसमें थोड़ा सा confusion होता है बच्चों को. Like 0. Is 0 a rational number or not? Yes, 0 is a rational number because if there is nothing in the denominator, there is 1. ये P by Q के फॉर्म में आ गया. It means it is a rational number. अब आते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ. 1. Is 1 a rational number or not? Yes, it is a rational number क्योंकि 1 को हम लोग जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये P by Q के फॉर्म में आ जाता है. Okay. Is A a rational number or not? Yes. कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो it means 1 है. इससे दिखाते हैं कि it is a rational. Guys, let's take 0.9. ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, डिनोमिनेटर में आपके क्या आ जाएगा 10. So guys, ये भी P by Q के फॉर्म में आ गया. जब ये P by Q के फॉर्म में आ जाएगा, it means decimal numbers are also the rational numbers. इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी डिजिट, आप कोई भी नंबर अगर P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स. सो गाइस, नेक्स्ट आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर आपकी रैशनल नंबर्स में 5 प्रॉपर्टीज आते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है सबसे पहले गाइस आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट होता है इट शुड आल्सो बी अ रैशनल नंबर. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल A upon B plus C upon D equals to E upon F. It means if we are taking two rational numbers, the resultant should also be a rational number. आपका ये E upon F भी एक rational number होना चाहिए. Okay? अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं.
Let's take 5/7 plus 3/7. 5 plus 3, since the denominators are same, we'll not take the LCM, we'll straight away write it like this. 5 plus 3 आपका हो जाएगा 8. Answer is 8/7. That is, अगर हम दो रैशनल नंबर that is 5/7 and 3/7 को ऐड करते हैं तो हमें get a rational number as a resultant. 8/6 is also a rational number. अब गाइस ये देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी आपकी सबट्रैक्शन में जाती है कि नहीं. लेट्स टेक द नंबर, लेट्स टेक द सेम नंबर 5/7 माइनस 3/7. डिनोमिनेटर में 7, न्यूमरेटर 2. तो आपका ये क्या हो जाएगा 2/7. इट मीन्स इफ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स द रिजल्टेंट विल अल्टीमेटली बी अ रैशनल नंबर. सो ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन एज वेल एज सबट्रैक्शन दोनों में जाती है. नेक्स्ट आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि if we are going to interchange the position of the rational number, the resultant will be same. ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले नेचुरल नंबर्स और let it be integers में भी पढ़ चुके हैं. It says that a plus b will be equals to b plus a. Okay? अब इसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे पढ़ते हैं? Let's take for example a/b plus c/d. तो it should always be equals to c/d plus a/b. ये कहती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो गाइस इसको हम लोग एक एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में हमारी जाती है कि नहीं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 5/9 plus 3/9. ओके, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा 3/9 plus 5/9. यहाँ देखेंगे 5 plus 3 होगा आपका 8. 8/9. सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे इस तरफ देखेंगे RHS की तरफ. 3 plus 5 will be equals to 8. That will be 8/9. So guys यहाँ पे LHS equals to RHS है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में जाएगी. सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं आपका सब्ट्रैक्शन में क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में आपकी जा रही है. 5/9 minus 3/9 equals to 3/9 minus 5/9. ये देखिए 5 minus 3 will be equals to 2/9 is equals to 3 minus 5. अब गाइस यहाँ देखिए 5 आपका ग्रेटर डिजिट है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस लगेगा -2/9 which is not equals to LHS. It means RHS is not equals to LHS. So guys ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में जाएगी. It means आपकी जो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर थी वो आपका एडिशन में भी जा रही थी एंड सब्ट्रैक्शन में भी वो आपकी जा रही थी. बट इन दिस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी आपकी सिर्फ एडिशन में जाएगी whereas it will not go with your subtraction. So guys here we come on to another property that is your guys additive identity. आपकी क्या कहती है अगर कोई भी रैशनल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड करते हैं तो it will not at all change. It means अगर a/b में हम जीरो ऐड करते हैं तो it will remain same. It will not change. Okay, so these are the properties of the rational number. Guys, हम लोग आते हैं another property of a rational number. Another property of the rational number is its additive inverse. Additive inverse आपकी क्या कहती है अगर कोई rational number होता है अगर वो प्लस में है तो उसको नेगेटिव कर दीजिए, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए. इट मींस a/b है तो उसको -a/b कर दीजिए, अगर -a/b है तो उसको a/b कर दीजिए. It means additive inverse of a rational number is a rational number itself with opposite sign. So guys ये जो एक opposite sign लिखा है ये बहुत important है. Additive inverse means जो भी साइन हो वहां पे आप उसको इंटरचेंज कर दीजिए. इट मींस अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में और अगर वो माइनस में है तो उसको
प्लस में चेंज कर दीजिए. ओके, सो विद दिस वी आर गोइंग टू डू सर्टेन सम्स रिलेटिंग टू दीज प्रॉपर्टीज ऑन. सो गाइस, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना. क्वेश्चन 1 सेज दैट फाइंड द सम ऑफ -5/12 प्लस 7/12. इसका मतलब है क्लास, ये देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के पहले ये देखिए कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है. 12 and 12, yes, the denominators are same. So guys, 12 and 12 denominator same, तो हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे. -5 plus 7 plus minus is always minus, लेकिन साइन एडिशन में हमेशा बड़े का लगता है. प्लस माइनस माइनस दैट इज 7 minus 5 will be 2. साइन बड़े का लगता है. बड़ा कौन है यहाँ पे? 7. 7 का साइन होगा प्लस. दैट विल बी प्लस 2/12. अगेन 2 1s are 2, 2 6s are, तो इसका आंसर होगा आपका 1/6. ओके, तो गाइस इसी टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Let's take 8/15 plus 5/12. Guys, यहाँ देखिए, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो we take the LCM of 15 and 12. 15 और 12 का LCM लेने पे आंसर आएगा आपका 60. अब यहाँ देखेंगे 15 के टेबल पे 60 कितनी बार आता है गाइस? 15 के टेबल में 60 आपका 4 बार आता है, तो 8 4s are 32 प्लस 12 के टेबल में आपका 16 कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स. 5 5s are 25. It will be 25 5 2 7 and then it will be 57/60. So guys, subtract 2/3 from 5/6. Guys, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. It says that subtract 2/3 from 5/6. It means from के बाद जो भी डिजिट लिखी हो, यानी कि from के बाद आपकी जो भी डिजिट लिखी है उसको आप पहले लिखोगे. It means 5/6 from की जगह माइनस और पहले वाली डिजिट आपकी पीछे चली जाएगी. That will be 2/3. अब 6 और 3 का आप लोग एलसीएम लोगे because the denominators are not same. 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6. 6 के टेबल में 6 1 बार, 5 1s are 5. माइनस 3 के टेबल में 6 2 times, 2 2s are 4. It will be 1/6. The answer here will be 1/6. So guys, अब हम लोग इसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं. -11/6 from 8/3. यहाँ देखिए क्लास, फ्रॉम के बाद क्या दे रखा है आपका? 8/3. इसका मतलब है आप यहाँ पे 8/3 को पहले लिखोगे, फ्रॉम की जगह माइनस कॉपी करेंगे एंड देन यू विल राइट -11/6. क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं लिख सकते. वी हैव टू यूज द ब्रैकेट ओवर हियर. 8/3 माइनस माइनस प्लस 11/6. अब 3 और 6 का एलसीएम होगा आपका यहाँ पे 6. 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा, तो इट विल बी 16 प्लस 11. 16 plus 11 will be 27/6. 3 1s are 3 and 9. It will be 9. The answer here will be 9. Okay. अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर्स के टाइप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर. पहला होगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, दूसरा होगा आपका नेगेटिव रैशनल नंबर. गाइस, इन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा गाइस? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2/3 और -5/6. द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो अल्टीमेटली आपका पॉजिटिव होगा. लेट्स कम टू द सेकंड एग्जांपल, दैट इज -5/6. यहाँ देखिए क्लास क्या होगा एक्चुअली, माइनस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर आपका न्यूट्रलाइज कर देंगे उस इफेक्ट को. नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर.
नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या क्या आता है? ईदर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। इट मींस या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक आपका नेगेटिव होगा। इसमें आता है आपका, ये किसके अंदर आएगा? आपका नेगेटिव रैशनल नंबर्स में। ओके, कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। What number should be subtracted from -2 to get 7/11? इसका मतलब है कि अब हमें सब्ट्रैक्ट के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है? फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। फ्रॉम के बाद यहाँ पे -2 है तो -2, सब्ट्रैक्टेड है तो माइनस। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? इट मींस इट विल बी a question mark over here equals to 7/11. It means यहाँ पे इसको x ले लेंगे। What number should be subtracted from -2 to get 7/11? माइनस की चीज उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी गाइस? प्लस में, तो ये -x is equals to 7/11 plus 2। एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ 1 होगा डिनोमिनेटर में। 11 7 प्लस 1, 11 के टेबल में 11 बार आता है तो यहाँ हो जाएगा ये 22, और ये किसके बराबर में होगा? -x के बराबर में। ओके, तो यहाँ पे गाइस फिर यहाँ देखेंगे -x विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस 22 विल बी इक्वल्स टू 29 एंड देन डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -29/11। So with this we come to a conclusion that -29/11 should be subtracted from -2 to get 7/11। Okay, तो गाइस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इन द एस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इन द एस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम लोग देखेंगे कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ कंप्लाई करती है, कौन सी प्रॉपर्टीज आपके डिवीजन के साथ कंप्लाई करती है। तो पहली प्रॉपर्टी है गाइस आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। इट मींस इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a upon b with c upon d, the resultant, let it be a, should also be a rational number. It should be a rational number. The most important thing in this is that the resultant should also be a rational number. Okay guys, so ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी जाएगी और आपकी डिवीजन में भी जाएगी। So this property will also go with your multiplication as well as with your division. Both of the aspect it will go. Next property आपकी आती है guys commutative property. Commutative property. Commutative property states that अगर आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है तो कोई भी फर्क आपका रिजल्टेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। एज इफ a upon b into c upon d should always be equals to c upon d into a upon b. ओके गाइस, मैं इसमें एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ, उसमें आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन के साथ जाएगी बट इट विल नॉट गो विद डिविजन। आप ये चेक करिएगा, इसमें आपको रियलाइज होगा कि इसमें LHS is equals to RHS कभी भी नहीं आएगा। So the next property is associative property. Associative property states that कि हम लोग अगर कोई भी पेयर्स बनाते हैं तो वैल्यू हमेशा सेम आए ऐसा नेसेसरी नहीं है डिवीजन में, बट उसकी वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए आपकी मल्टीप्लिकेशन में। इट मींस दिस साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू
दिस साइड। ये प्रॉपर्टी भी आपकी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, whereas it will not be applied with division. ओके, ये प्रॉपर्टी भी आपकी डिवीजन में नहीं जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको आप ऐसे समझिए, A अपॉन बी अगर आपका C अपॉन डी प्लस E अपॉन एफ दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, इट मींस ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A अपॉन बी इंटू C अपॉन डी, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस A अपॉन बी इंटू E अपॉन एफ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी, इसको ध्यान से समझिए। ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फॉर दिस। इफ 2/3 is outside and it is multiplied with 5/3 plus, okay, let's take 4/3। तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है तो एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम इससे इसको करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 5/3 प्लस 2/3 इंटू 4/3। ये देखिए 2 5s are 10, 3 3s are 9 प्लस 2 4s are 8, 3 3s are 9। It will be 10 plus 8 upon 9, which will be 18 upon 9, that will again turn up to 2. So इन दोनों को ऐड करने पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आंसर आएगा आपका 2। Now guys we are going to study another important property of rational number। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, multiplicative inverse। Every non-zero rational number that is a by b has a multiplicative inverse b by a। That is, अगर आपसे कहा जाएगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको सिंपली उसको रेसिप्रोकल कर देना है। लेट्स टेक 5/3। अब 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा गाइस, 3/5। इट मींस कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, उसको कहा जा रहा है कि आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इट मींस इसको आपको b by a करना है, दैट इज उसको आपको रेसिप्रोकल करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Multiplicative identity says that if a number a by b is multiplied with 1, the resultant will be the same. It means let any number, let's take 2/3, इसको आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखानी है, डिवाइडेड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी, the answer will be the same. Okay, boys, we'll practice few sums based on the topic that we have studied right now. The question says find the product of 4/9 and 7/12। प्रोडक्ट का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई करना, हमेशा याद रखिएगा ये चीज। एंड की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली क्वेश्चन उतारना है, सेम टू सेम 4/9, एंड की जगह मल्टीप्लाई एंड देन 7/12। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 7 1s are 7, तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 7, 9 3s are 27। So answer will be your 7/27। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, -13 let's take multiplied by -10। गाइस यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, माइनस माइनस आपका हमेशा होता है प्लस, प्लस प्लस आपका होगा हमेशा प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। दो सेम साइन आपके प्लस में जाएंगे, दो डिफरेंट साइन आपके माइनस करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। यहाँ देखिए क्लास,
5 ones are 5 and 5 twos are 10. Minus minus will be your plus. 13 twos are 26. So the answer will be plus 26, or you can straight away write it as 26. So guys, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। इन क्वेश्चन पे आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस क्वेश्चंस की। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। वैसे देखिए तो 6 and 7 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला एक था कि ये देखिए 6 और 7 के बीच में एक नंबर लेके आना है। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इट मींस 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 13/2। 6 और 7 के बीच में एक नंबर आ गया क्या 13/2। तो पहला रैशनल नंबर जो आपको 6 और 7 के बीच में मिला है दैट विल बी 13/2। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं दूसरे रैशनल नंबर की तरफ। गाइस, दूसरे रैशनल नंबर को हमें निकालने के लिए इन दोनों डिजिट के बीच का एक रैशनल नंबर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे? सेकंड स्टेप हमारा 6 प्लस 13/2 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ कुछ भी नहीं है, पहले हम लोग इसका न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे। 1 और 2 का है यहाँ पे 2, इट विल बी 12 प्लस 13/2। 12 प्लस 13 इट विल बी 25/4। तो गाइस अब इसका हमें सेकेंड नंबर भी मिल गया। सेकेंड नंबर विल बी 25/4। सेकेंड नंबर किसके बीच में आया है? 6, 25/4, 13/2 एंड 7 के बीच में। अब हमें क्या लेना है? थर्ड नंबर निकालना है। थर्ड नंबर किसके बीच में निकालेंगे? इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। We will take 13/2 and add 7 to it, divide the whole term by 2. It will be 13 plus 14 whole divided by 2 and then again divide. It will पढ़ेंगे how we can represent a rational number in a number line. Okay, let's take 3/5. We have to represent 3/5 in a number line. So guys, पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या ये नंबर किन दो बीच में लाई करता है। तो we will divide this number 5/3 अंदर। 5 के टेबल में 3 आता नहीं है, we will put a decimal over here, 0 इंक्रीज करेंगे और 6 and it will be the remainder will be 0। तो आंसर आपको क्या आया? 0.6। इसका मतलब है ये पूरा रैशनल नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नीडफुल जितना होगा सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और इधर 2 ले लेते 3। ओके, ठीक गाइस, यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में आपका नंबर है 5। डिनोमिनेटर में आपका क्या है? 5। जितना भी नंबर होता है गाइस उससे एक नंबर कम हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेशंस बनाते हैं। यहाँ पे 5 है तो हम लोग यहाँ पे 4 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए क्यों 4 बनाएंगे? ये होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। 1/1 होगा आपका 5/5। ये नंबर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/5, ये 2/5, this number 3/5, this number 4/5 and this number 5/5। हमें यहाँ निकालना क्या था? 3/5 गाइस। 3/5 होगा इस लाइन में ये पार्ट 3/5। तो गाइस आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। 0 और 1 के बीच में ये 3/5 लाई करेगा। ये हमने डिवाइड करके देख लिया था वहां पे। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो हम लोग यहाँ पे 4 डिनोमिनेशंस बनाएंगे, 1 2 3
4। और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 1 2 एंड 3 आपका ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा 3/5 लाइन को। सो गाइस अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज 13/4। 13/4 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग नंबर लाइन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि 13/4 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। फॉर दिस वी विल डिवाइड 13/4। 3 12 -1, तो ये क्या आ जाएगा गाइस आपका, इसको हम लोग 3 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 1/4। तो गाइस इसका मतलब है ये रैशनल नंबर आपका 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। नाउ नंबर लाइन पे आएंगे, 0 1 2 3 और फिर 4। ठीक, ये नंबर हम लोगों ने हाइड कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1/4। मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो आप लोग सिर्फ 3 लाइंस बनाएंगे, दैट विल बी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/4। तो 1/4 में मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा रिप्रेजेंट 1/4, ये होगा 2/4, दिस विल रिप्रेजेंट 3/4 एंड दिस विल रिप्रेजेंट 4/4। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/4। तो ये आपकी जो डिनोमिनेशन है ये आपकी आएगी 1/4। ओके, सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेगेटिव नंबर को किस तरह एक नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके लिए लेंगे कि एग्जाम्पल -9/7। सबसे पहले देखेंगे कि -9/7 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। फॉर दिस वी विल डिवाइड 9 विद 7। 7 1 are 7 and then -2 बचा यहाँ पे। तो we can write -9/7 as -1 2/7. This shows that this number lie between -1 and -2. Okay, तो अब हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे गाइस। नंबर लाइन 0 -1 and then -2। यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, 7। तो यहाँ पे कितनी हम लोग बनाएंगे लाइन, 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 लाइंस ड्रॉ कर ली। हमें प्लॉट क्या करना है, 2/7। यहाँ पे देखेंगे ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 and this line will show 7/7. ओके, एक्चुअली में हमें प्लॉट क्या करना था, -1 2/7। -1 2/7 को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। We will represent it like this. Okay, so guys, this was the last topic from the chapter rational number. I hope एक एक चीज आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब आप एक्सरसाइज लगाइएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके उसको अपना डाउट क्लियर करिएगा। ओके, so with this I'll be coming back to you with the next chapter soon. Till then, stay tuned. Bye bye.